gentlemen, honorable guests, and fellow civil service enthusiasts, we stand before you today on behalf of the Literature and Film Council of DTU, absolutely thrilled to extend a heartfelt welcome to you all for a prestigious event that aims to bridge the worlds of UPSC preparation and guidance. Today, we embark on a journey of insight and inspiration as we prepare to host an event that promises to be nothing short of extraordinary. An event where the pages of UPSC exam preparation will meet the reels of cinematic and literary brilliance. I would like to invite our guests, Ms. Priyanka Goyal and Mr. Abhishek Mishra, with a round of applause. We have come together to celebrate the spirit of dedication, perseverance, and achievement. It's an evening that promises to illuminate your path towards the civil services while drawing inspiration from luminaries who have already blazed their trail. And who better to guide us on this enlightening journey than our distinguished guest speakers? Drishti IAS is India's leading institute for the preparation of civil services examination for all the three levels: preliminary test, mains exam, and personality test. The institute was founded in 1999 by Dr. Vikas Divyakriti and Dr. Taruna Verma. Over the past 2 decades, Drishti IAS has set new benchmarks in quality education. Drishti IAS, Drishti Publication, and Drishti Learning App together prepares aspirants with its online classes, books, test series, and classroom programs available in Mukherjee Nagar, Karol Bagh, Jaipur, Prayagraj, and Lucknow centers. Every year, thousands of aspirants of English as well as Hindi medium achieve their dreams under the careful guidance of Drishti IAS faculty. The commitment to providing exemplary education to aspirants has given birth to numerous success stories, and one such success story is here today in front of you in person. First, allow me to introduce you to a remarkable individual who needs no introduction in the UPSC community. Our first guest speaker, Ms. Priyanka Goyal, secured an astounding All India rank of 369 in the UPSC Civil Services Examination of 2022. Her journey to success serves as a beacon of hope and an epitome of relentless determination. Her achievement is not merely a rank, it's a testament to the power of dreams pursued with unwavering dedication. We are truly honored to have her amongst us today, and we eagerly await her words of honor and wisdom, which will undoubtedly inspire each one of us. But our journey doesn't end here. Our second guest speaker is a name synonymous with excellence in UPSC interview guidance. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Abhishek Mishra as a distinguished faculty member at Drishti IAS and an esteemed interview panelist. Abhishek sir has played a pivotal role in shaping the futures of countless civil service aspirants. His insights into interview stage of UPSC examination are unparalleled, and today we have the privilege of learning from the best in the field. I would kindly request Professor S. Indu, Dean Student Welfare, and Professor Yasha Hasija, Chairperson LFC, to felicitate the guest of honor. Now I would request Varun Modi, President LFC, to felicitate Indu Ma'am, Dean Student Welfare. I would like to request Daksh Gautam, President LFC, to felicitate Yasha Ma'am, Chairperson LFC. Ladies and gentlemen,
The aim of this event is not just to impart knowledge, but to ignite a fire within each of us. The civil services examination is a journey filled with challenges, but it's a journey worth taking. It's a journey that leads to not just a career, but a calling. And it's a journey that demands not just effort, but passion. Our guest speakers embody this spirit, and their presence here today is a testament to their commitment to guide and inspire the future torchbearers of civil services. As we move forward with this event, we encourage you all to engage actively, ask questions, and soak in the wisdom that will be shared here. Together, we will unravel the mysteries of success in the civil services and discover how literature, film, and art can serve as powerful tools in this journey. Now let us take a moment to reflect on the remarkable journey of Miss Priyanka Goyal. Her dedication, perseverance, and commitment to civil services examination have paved the way for her success. Priyanka's achievement is a testament to the power of hard work and pursuit of one's dreams. We eagerly await her words of honor and wisdom, which will undoubtedly inspire us all. Moving on, we have Mr. Abhishek Mishra, a guiding light for civil service aspirants as a faculty member at Drishti IAS and an interview panelist. Abhishek sir has contributed significantly to the success stories of many candidates. His expertise in the field of civil services is unrivaled. And today, we have the privilege of hearing from him about the keys to cracking the interview stage of the UPSC examination. Now, without further ado, let's welcome our guest speakers to the stage. Please join me in giving a warm round of applause to Ms. Priyanka Goyal and Mr. Abhishek Mishra. As we will soon begin the session with our lovely guests, I would like to know how many of you here are actually really interested in civil services and want to become an IAS. Can I have the numbers, please? Wow, that is a lot of people. I hope that today's session is very helpful to all of you, and it helps you move forward in your journey in becoming an IAS. First, we will have Mr. Abhishek Mishra, who will introduce you to the world of UPSC and give you all the necessary guidance. A very good evening to all of you, and I'll keep this interaction in bilingual mode. Okay, is that fine? ठीक है. तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आई एम ऑल्सो अ फेलो इंजीनियर. I did my engineering way back in 2004. ठीक है, 2000 से 2004. And when I was in my class 12, then that time your college was still very prestigious, always has been, and DCE was one of the top choices for any of us कि IITs को consider कर रहे हैं और IITs के बाद कौन सा college consider कर रहे हैं. तो yes, DCE was always a top choice. So I am very happy कि maybe not as a student but as a person who has been invited to a seminar. I am really very happy to be here. And one more thing about DCE कि पहले तो ये DCE था, अब ये DTU हो गया है. So every year we have so many students who come to interview and they are also coming from DTU, right? So this institute has a very good legacy and it is really our pleasure to be here among yourselves, right? Now एक और स्टोरी मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ अपने बारे में कि when I did my engineering, I did it from Assam, right? तो असम में एक जौरहट इंजीनियरिंग कॉलेज है from where I did. This college is also an old one. It's a government engineering college, 1960 का established है. और when I came to Delhi for UPSC preparation after completing my engineering, so I joined a coaching institution. और जब मैं वहाँ बैठा पहले दिन तो लास्ट में बैठा एकदम, जैसे कि यहाँ भी कई लोग लास्ट में बैठे हुए हैं, तो लास्ट में बैठने का अपना अलग मज़ा है. तो जैसे मैंने वहाँ बैठा तो मैंने देखा कि मेरी
मेरे आगे वाली सीट पे 3 लोग बैठे हुए हैं एंड दे वर वियरिंग द जैकेट्स ऑफ IIT दिल्ली एंड उनको देखते ही मुझे लगा कि what will happen to me in this classroom of 300 people. Nobody knows my college, okay, but yes, everybody knows about IIT Delhi. So I'm going to compete in UPSC civil services with these people, right, who are coming from the best of institutions. So what chance I do have? तो एकदम से मुझे एक पैनिक अटैक आ गया वहाँ, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें ठीक हुई and we started doing our classes. और ultimately what happened, जब prelims हुआ तो I was among the few who could clear prelims, right? तो इस एग्ज़ाम में ये बात बहुत ज़रूरी है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में कि दिस गिव्स अस अ लेवल प्लेइंग फील्ड. इट इज़ नॉट फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग, ठीक है, बट इट इज़ हाउ यू आर डूइंग what you are supposed to do, that will matter. So people who are coming from best of institutions, they sometimes falter in this journey of UPSC civil services, क्योंकि ये जर्नी जो है थोड़ा सा लॉन्ग ड्रॉन है, थोड़ी जर्नी लंबी है. इट इज़ थ्रू 3 stages, और वो 3 stages आपको पता ही होगा कि देयर इज़ द प्रिलिमिनरी एग्जाम, देयर इज़ द मेंस एंड फाइनली यू हैव द इंटरव्यू. और प्रिलिमिनरी एग्जाम कैसा है? दैट इज़ एन एलिमिनेशन टेस्ट, रिजेक्शन वाला है एग्जाम है कि पीपल आर कमिंग इन होड्स एंड यूपीएससी उनको हटाता जा रहा है रास्ते से. सो इट वर्क्स लाइक दैट. इन द मेंस यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बट द एग्जाम बिकम्स मोर इंटेंस, ठीक है, कॉम्पिटिशन इंटेंस हो जाता है. एंड वंस यू रीच द इंटरव्यू स्टेज देन you have a fair chance to make it through to the civil services. But what if you don't? Then the cycle starts from first level, right? तो आपको फिर से प्रीलिम्स देना पड़ेगा, फिर से मेंस क्लियर करना पड़ेगा, फिर इंटरव्यू पहुंचेंगे. एंड दिस मेक्स इट वेरी वेरी टैक्सिंग, या थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है. बिकॉज मैनी टाइम्स व्हाट हैपन्स, पीपल हु हैव given interview, they falter in the next prelims, and this happens. So what should be done about this exam? In this exam the only thing that is certain is uncertainty, so you have to accept it. Now what will help you? You are already studying in a very top institution, तो आपने competition को face किया हुआ है. Reaching DTU would not have been easy, ठीक है, आपने इसके लिए काफ़ी तैयारी की होगी, काफ़ी मेहनत की होगी. देन ओनली यू हैव रीच्ड हियर, सो यू आर ऑलरेडी, यू नो द ग्राइंड, ठीक है, आप उससे गुजर चुके हैं. अब ये आपको डिसाइड करना है कि वेदर यू वांट टू गो थ्रू अनदर ग्राइंड और यू वांट टू गो फॉर सम इंजीनियरिंग ऑप्शन. तो आई थिंक दैट इज इंडिविजुअल डिसीजन, हर इंडिविजुअल को अपने आप सोचना चाहिए. नाउ व्हाट इज गुड अबाउट सिविल सर्विसेज, दैट आई कैन मे बी टेल यू. See, I finally did not make it to the civil services. I gave 4 attempts. That time 4 attempts were allowed, and I wrote mains 4 times. I gave 2 interviews also. In interview the score was good, but somehow in one of my optional paper, I had psychology and public administration as my optional papers. अब आपके लिए सिर्फ एक ऑप्शनल होता है, सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल थे. So in optional paper, like my score was going down in one of the papers, and I could not decipher कि what is going wrong, ठीक है, because in the other paper I was scoring well. So what we need to realize in this exam कि हमारा why बहुत strong होना चाहिए, why we want to go for it. Now थोड़े दिन पहले कोविड पैंडेमिक था, ठीक है, all of us went through that difficult period. Now for most of us who were in private jobs, what was the drill? The drill was Prime Minister Modi ji was coming to television, कभी कभी बीच में आ रहे थे जनता के लिए संदेश, and he was telling us to stay at home, not venture outside, so that COVID does not spread. So most of us were okay with that कि हम अपने घर में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं. But what about those who were in the front line? कौन थे वो लोग?
those were the people who were working for the government, ठीक है, working in the government. So somebody who had cleared UPSC and was maybe district collector of a district or maybe SP of a district, so these people were out there, they were trying to make life easy for us, ठीक है. Howsoever we may criticize, कभी कभी होता है ना, हम लोग मूवीज़ में देखते हैं, we criticize civil servants को, and maybe we also criticize especially police, it comes on for a lot of criticism. बट आप एक इंस्टेंस सोचिए कि अगर कोई ट्रैफिक लाइट ही है, वहाँ ट्रैफिक पुलिसमैन नहीं है, राइट, और कितना केओस क्रिएट हो जाता है. समटाइम्स उनके रहने से भी होता है. मतलब आई हैव सीन कि एक गोल चक्कर है वेयर आई लिव, और अगर वहाँ पुलिसमैन नहीं होता है तो वो स्मूथली फ्लो करता है. बट इफ़ द ट्रैफिक पुलिस इज़ देयर तो देन देयर इज़ अ जैम. तो ऐसा भी होता है, हम लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं. बट मोर और लेस वी हैव टू एक्सेप्ट कि अगर चीज़ें सही ढंग से चल रही हैं तो somebody is behind that, and that somebody is the steel frame of India, and that is our bureaucracy. तो जो bureaucrats हैं वो हमारे जो सिस्टम को ठीक ठाक चल रहा है ना, उसके पीछे वही लोग खड़े हुए हैं. yes there is corruption, yes there is some abuse of power also, ठीक है. अभी तो वैसे लाल बत्ती और ये सारी चीज़ें हटा ली गई हैं. दैट यूज टू बी ए वेरी बिग क्रेज, ओके. तो दोज ऑफ अस हु वेर प्रिपेयरिंग, तो हमारे लिए तो ये था कि मतलब हाँ एक दिन लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी, राइट. बट अब मोदी जी ने वो भी हटा लिया है. आप आईपीएस में जाएंगे तो वहाँ ज़रूर आपको जो पुलिस वाली गाड़ी है ना, वो अभी भी है, जिसमें वाइट एंड ब्लू वो है बत्ती, राइट. तो क्या डिफरेंस हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ए CEO ऑफ अ बिग कंपनी, ठीक है, आप सोचिए अपना स्टार्टअप बनाया, आप CEO बन गए, एंड योर कंपनी इज डूइंग वेरी वेल, यू हैव अ बिग ऑफिस बिल्डिंग, सब कुछ अच्छा चल रहा है. नाउ हाउ मेनी पीपल नो यू? आपके सारे एम्प्लॉयज़ आपको जानते हैं, ठीक है. आप अपने ऑफिस से जब तक नीचे पहुंचते हो तब तक आप परेशान हो जाते हैं विशेष को रिस्पॉन्ड करते हुए, ठीक है. बाद में आपको लगता है कि छोड़ो, मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा, आई एम द बॉस, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा. नाउ थिंक अबाउट द, जैसे आप अपने प्रीमाइसेस से बाहर स्टेप करते हैं, ठीक है, डज एनीबडी नो यू? हार्डली, ठीक है. शायद ही कोई आपको जानता है. कोई जानता होगा तो ऐसे कि अच्छा हाँ इस ऑफिस में ये सर आते हैं, ठीक है, एक बड़ी सी गाड़ी में ये सर आते हैं, दैट इज इट. नाउ थिंक वहाँ का जो DM है, ठीक है, इफ द DM इज कमिंग टू दैट लोकेलिटी, एवरीबडी इज अलर्ट, ठीक है. पुलिस की 2-4 गाड़ी आ जाएगी, उनके साथ एक कॉन्वे आएगा, सब कुछ. सी दैट इज द पावर एंड सोशल प्रेस्टीज एसोसिएटेड विद दिस सर्विसेज. यू मे लाइक इट, यू मे नॉट लाइक इट. आपको लगता है कि हाँ ये सोशा है, ये ठीक नहीं है, बट हम भी देखते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ भी रेंज रोवर पे रेंज रोवर चल रही है, BMW आ रही है, इधर उधर सब कुछ. एंड व्हेन द प्राइम मिनिस्टर इज एप्रिशिएटेड, उनको बाहर कोई फॉरेन में अवार्ड मिलता है, ही गोज टू US एज अ स्टेट गेस्ट, who doesn't feel proud? All of us feel proud, ठीक है, because he is not just prime minister of a political party, he is prime minister of India. Same way, जब वो DM है तो he is not DM as an individual, he is DM of the district, वो सबका रिप्रेजेंटेटिव है. तो उनके साथ जो लाव लश्कर है वो जस्टिफाइड है, एंड दैट इज द डिफरेंस. तो ये सिविल सर्विसेज आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है कि when you step out of the office, everybody takes notice. People in small towns, they change their route कि DM साहब आ रहे हैं. Not that they have done anything wrong. मतलब एक fear और जो respect है उसके लिए कि अच्छा वो DM साहब की गाड़ी निकलेगी ना, साइड से चलते हैं. So that is there. तो ये जो social prestige है, that is very difficult to find in any other job. It may take years. Somebody, आप लोग जानते हैं कैलाश सत्यार्थी कौन है? यू नो, नोबेल प्राइज विनर है. क्या नाम है उनकी ऑर्गेनाइजेशन का? BBA, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है. उनको जो मिला था नोबेल प्राइज, किसके साथ शेयर किया था? मलाला यूसुफजई. शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, राइट. पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? नहीं, एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है अभी. तो जो कोई नाम बता सकता है मुझे? मतलब आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड.
एनीबडी इफ दे कैन रेज देयर हैंड, मतलब गूगल करने से पहले, चैट जीपीटी यूज करने से पहले। एनीबडी? नहीं, ठीक है। आप लोग थोड़ा करंट अफेयर्स अपडेट करना है आपको, ठीक है? राइट, हाँ, यस। व्हाट इज द नेम? आपका नाम शशांक है, प्राइम मिनिस्टर का नाम? हाँ, आसिफ मुनीर। नो, आसिफ अली जरदारी भी नहीं है। ही इज फादर ऑफ बिलावल भुट्टो, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन। इसीलिए यूपीएससी में नंबर कम आते हैं ना, ठीक है? So we have to answer the question, right? Not tell whatever we know. He is Mr. काकड़, ठीक है? KAKAR, ये सरनेम दिल्ली में भी होता है, ठीक है? The person is from बलूचिस्तान, I am forgetting the full name, but लास्ट में उनके KAKAR आता है, काकड़, and he is from बलूचिस्तान, ठीक है? He is caretaker prime minister, right? अभी कुछ ही दिन पहले बने हैं। So पॉइंट इज कि मैं बता रहा था कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में, तो ही इज वेरी फेमस, ठीक है? बट उनकी एज देखिए ना, उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ उन्होंने पूरा आंदोलन चलाया है, एंड ही इज नाउ वेल रिगार्डेड, राइट? बट क्या आप चाहते हैं कि आप भी 60 साल 70 साल के हो जाएं, फिर मतलब आपको रिकॉग्निशन मिले, पब्लिक रिकॉग्निशन मिले, नोबेल प्राइज ही मिल जाए? यू वांट समथिंग फास्ट ना, ठीक है? इंस्टेंट वाली जनरेशन है, रील वाली जनरेशन है, यू वांट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहाँ मिलेगा? शायद कहीं नहीं, बट वेरी क्लोज टू इट इज सिविल सर्विसेज, विच गिव्स यू सोशल प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन एट ए वेरी यंग एज। आप एग्जाम क्लियर कर लीजिए, आपका हर रिलेटिव दूर का, आपका हर फ्रेंड, या जो फ्रेंड नहीं भी था बट उसने आपको देखा था, बोले हाँ मेरा फ्रेंड है, इस बार ये AIR रैंक है और मेरा फ्रेंड है। तो दिस इज वन जॉब वेयर यू आर हैप्पी टू गेट इट, बट पीपल हु नो यू आर मोर हैप्पी व्हेन यू गेट इट, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस वगैरह चलता है। सो दिस एग्जाम गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म एट ए वेरी यंग एज विच यू कैन यूज फॉर डूइंग गुड, लॉट ऑफ गुड। आप बहुत अच्छा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं ट्रैफिक लाइट पे, आप देखते हैं कि अच्छा बच्चे भीख मांग रहे हैं, कुछ ऐसा है, मतलब ना, पीपल हु यू रियली वांट टू हेल्प बट यू डोंट नो हाउ यू कैन हेल्प देम। सो एक्चुअली थ्रू वन ऑफ सच सेमिनार्स ओनली आई मेट ए वेरी गुड ऑफिसर, ठीक है? वो भी रिसेंटली सिलेक्टेड थे एंड ही वॉज फ्रॉम IIT रुड़की, राइट? आई विल नॉट नेम हिम, बट द पर्सन वॉज सो इंस्पिरेशनल। मतलब उस सेमिनार में मुझे सबसे अच्छा लगा उनकी बातें सुनना, because what he said that he wanted to join civil services because of the right reasons. Sometimes हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं बट हमारे reasons are maybe not right, ठीक है? हम उसके पीछे पावर, प्रेस्टीज के पीछे जा रहे हैं, बट he said, and उनके पास पूरा उसके लिए एविडेंस था कि he has been helping out people, जो ऐसे सेक्स ट्रैफिकर्स हैं, सेक्स ट्रैफिकिंग में लोग हैं, जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में लोग हैं, उनको हेल्प कर रहे थे वो। जो बच्चे हैं, विमेन हैं, उनके लिए जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनको वो फैसिलिटेट कर रहे थे कि हाउ दे कैन हेल्प, गेट हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट? सबको पता नहीं होता है, बट व्हेन यू आर इन दिस सर्विस मे बी यू कैन हेल्प आउट पीपल हु आर एट द मार्जिन्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है, जो कि शायद आपको और कहीं मिलना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, और जगहों पे भी हम काम कर सकते हैं, but it will take us lot of time to actually establish our credentials, कि जहाँ लोग हमें सीरियसली लेना शुरू करें, ठीक है? You will say कि हाँ I want to help, लोग बोलेंगे ठीक है अपना NGO शुरू करो, and when you start an NGO people will start questioning why you are starting an NGO. Maybe you have this idea of doing some corruption, ठीक है? इस तरीके की चीज़ें होंगी, बट जब आप सिविल सर्विसेज में हैं तो पूरा स्टेट का मशीनरी आपके साथ है, एंड दैट हेल्प्स, राइट? तो ये जो सोशल प्रेस्टीज है, दिस यू कैन गेट फ्रॉम दिस सर्विस, एंड आई हैव सीन सो मैनी सिविल सर्वेंट्स, क्योंकि क्या है ना, मीडिया में हम जो सुनते हैं जनरली इट इज सेंसेशनलिज्म, सो पीपल जनरली कवर द नेगेटिव साइड, कि किसी ने कोई करप्शन केस में पकड़ा गया तो उसको फटाफट फ्रंट पेज में, किसी ने बहुत अच्छा काम किया, फॉर एग्जाम्पल यू माइट बी नोइंग अबाउट
वन मिस्टर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, नॉट नील आर्मस्ट्रॉन्ग बट लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, पामे आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली. ही इज फ्रॉम वेयर? नो नो नॉट, आई एम सॉरी, मतलब नील आर्मस्ट्रॉन्ग मैंने गलत बोला. ही इज मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग फ्रॉम नागालैंड और मणिपुर, Manipur IAS, right? Pame Armstrong, and he did things which were beyond his job requirement. ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं. और भी एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सिविल सर्वेंट्स हैव गॉन एंड दे हैव, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ है तो वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि वी डोंट वांट दिस ऑफिसर टू गो. तो वी कैन ऑल्सो डू सच गुड थिंग्स थ्रू दिस सर्विस, राइट? तो बस मैं अब फाइनली आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाउ वी कैन हेल्प यू इन दैट जर्नी. एंड आफ्टर दैट वी वुड लाइक टू लिसन टू, ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू लिसन टू प्रियंका जी स्टोरी एंड हाउ शी मेड इट टू द सिविल सर्विसेज. तो मैंने आपको बताया कि 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स में यू हैव 2 पेपर्स विच इज़ योर जनरल स्टडीज एंड द अदर इज CSAT. ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिससे कि आप काफ़ी फेमिलियर होंगे. आपने DTU के लिए भी एंट्रेंस दिया होगा डेफिनेटली. तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, नेगेटिव मार्किंग भी है. CSAT इज़ वेरी सिंपल, स्पेशली फॉर पीपल लाइक अस हु आर इंजीनियर्स, बट कॉम्प्लेक्सिटी लेवल धीरे धीरे बढ़ा दिया गया है. तो दिस ईयर पेपर वॉज लिटिल बिट लेंथी ऑल्सो एंड टफ, बट अगेन जो लोग मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है. प्रॉब्लम कम्स विद द GS पेपर. GS पेपर को हम बोलते जनरल हैं, लेकिन उसके बारे में कुछ भी जनरल नहीं है. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक नॉलेज दैट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, बी इट हिस्ट्री, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट जोग्राफी, बी इट पॉलिटी, सभी में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए. प्लस यू ऑल्सो नीड टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट अफेयर्स, करंट डेवलपमेंट्स, राइट? तो प्रीलिम्स में सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है वो है कि 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है, यही फिगर मैंने लास्ट सुना हुआ है. तो 10 लाख, नोबडी हैज़ एक्चुअली वेरीफाइड इट कि 10 लाख है या 11 लाख है. बट इवन इफ इट इज़ 10 lakhs, हाउ मेनी पीपल अपियर इन द एग्जाम? 4 to 5 lakhs इज द नंबर, राइट? तो आपने देखा कि कंपटीशन कितना हो गया? आधा. ठीक है, क्योंकि कैसे लोगों ने अप्लाई किया? फॉर एग्जाम्पल रूममेट तैयारी कर रहे हैं, बोला क्या कर रहे हो? बोला UPSC का फॉर्म भर रहा हूँ. बोला चलो मेरा भी भर दो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे नंबर्स इंक्रीज हो जाते हैं. घर से फ़ोन आ गया कि अच्छा बेटा UPSC का भी फॉर्म डाल देना, उसने भी डाल दिया, वो भी एक नंबर बढ़ गया. इसी प्रकार कोई है कि अच्छा मतलब 4 दोस्त जा रहे हैं देने, चलो यार मैं अकेला क्या करूँगा, मैं भी चलता हूँ, संडे है, तो ऐसे नंबर बढ़ गया. सो पीपल हु रियली गो विथ प्रिपरेशन दे आर लेस. और वो कितना नंबर होगा प्रीलिम्स में? दैट इज अराउंड 50,000 to 70,000. ठीक है, बेस्ट एस्टिमेट है कि करीब करीब इतने ही नंबर है. सो योर कॉम्पिटिशन इज विथ नॉट दोज 10 lakhs बट विथ दोज 50 to 70,000 जो प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं. नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप 10 लाख में हैं या आप उन 50-70 हज़ार में हैं. आफ्टर प्रीलिम्स, ठीक है, जो कि एक रिजेक्शन टेस्ट है, उसके बाद आता है मेंस. मेंस में यू हैव 9 पेपर्स एंड 9 पेपर्स में 2 पेपर्स आर क्वालिफाइंग. क्वालिफाइंग में एक तो आपका इंग्लिश है, दैट इज कंपलसरी फॉर एवरीबडी. 10th लेवल का इंग्लिश आपको पेपर क्वालिफाई करना है. द अदर पेपर विल बी योर रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग. फॉर एग्जाम्पल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी हिंदी. बहुत लोग फेल करते हैं हिंदी में. ठीक है, तो इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली. आपको पेपर कंप्लीट करना है, निबंध लिखना पड़ेगा, प्रेसी राइटिंग करनी पड़ेगी, काफ़ी चीज़ें. ठीक है, विलोम शब्द वगैरह वगैरह. तो बहुत लोग आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम आती है, राइट? आफ्टर दिस इंग्लिश एंड हिंदी पेपर्स यू हैव ऐसे पेपर, निबंध. ऐसे लिखना पड़ता है. 2 topics are given, right? You have to select 2 topics out of 8 topics that are given, section A and section B. और आपको ऐसे लिखना पड़ता है. एंड ऐसे पेपर इज अगेन ऑफ 250 marks. ये नंबर काउंट होता है. आफ्टर दैट यू हैव GS 4 पेपर्स, GS1, GS2, GS3 एंड GS4. ये भी सारे 250 marks ईच हैं, तो 1000 marks. 1000 प्लस 250 ऑफ ऐसे 1250. इसके बाद आता है ऑप्शनल पेपर. ऑप्शनल पेपर दैट मीन्स यू हैव टू सिलेक्ट वन सब्जेक्ट. देयर इज नथिंग ऑप्शनल अबाउट ऑप्शनल. ठीक है, ऑप्शन नहीं है कि हमको लेना या नहीं.
इट इज़ कंपल्सरी एक्चुअली, मिसनोमर है। तो यहाँ ऑप्शनल बहुत सारे हैं। यू कैन टेक योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑल्सो, बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आर देयर, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बट मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स दे ऑप्ट फॉर नॉन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लाइक कोई पॉलिटिकल साइंस लेता है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी वगैरह वगैरह। एंड बाकी ब्रांच के लोग या बाकी स्ट्रीम के लोग दे डोंट लाइक इंजीनियर्स, ओके, बिकॉज क्या होता है कि इंजीनियर्स वो सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर कर लेते हैं, राइट। सो ये विडम्बना है, आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इंजीनियर्स आर लाइक 90% ऑफ द क्राउड भी जो है वो 11 लाख में भी, और जो 70,000 है उसमें भी 90% क्राउड इज इंजीनियर्स, राइट। तो इंटरव्यू में भी हमारे पास अगर 10 कैंडिडेट आ रहे हैं तो 8 इंजीनियर आ रहे हैं, राइट। तो इंजीनियर्स का डोमिनेशन है। आफ्टर दैट यू हैव ऑप्शनल पेपर, आपने ले लिया तो उसके 2 पेपर देने होंगे, 250 इंटू 2 500, तो टोटल ये हुआ 1750। यहाँ मेन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, एज इन की मतलब यहाँ इंटेंस कंपटीशन है बिटवीन जो 15-20 हज़ार लोग क्वालिफाई करते हैं प्रीलिम्स, तो इनके बीच में स्टिफ कंपटीशन रहता है। यहाँ से यूपीएससी कॉल्स फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1.5 टाइम्स, जितनी वैकेंसी होगी उसका 1.5 टाइम्स दे कॉल फॉर इंटरव्यू, राइट, और 2 टाइम्स इतना बुलाते हैं। सो यू हैव वेरी गुड चांस वंस यू रीच द इंटरव्यू स्टेज। इंटरव्यू इज ऑफ 275 मार्क्स एंड बोर्ड विल आस्क यू क्वेश्चंस ऑन योर डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें कि आपका सारा बैकग्राउंड रहता है, राइट फ्रॉम योर स्कूलिंग, योर हॉबीज एंड एवरीथिंग। तो आपसे 30-35 मिनट्स का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि 5 मेंबर बोर्ड होता है यूपीएससी का। दे आस्क यू क्वेश्चंस अबाउट करंट अफेयर्स, दे आस्क यू क्वेश्चन अबाउट योर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दे विल आस्क यू यू हैव डन योर इंजीनियरिंग फ्रॉम अ टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन DTU, फिर आप यहाँ क्यों आए हैं, राइट। तो यू नीड टू हैव एन आंसर फॉर दैट, ओके। और आपने देखा ही होगा, अगर दृष्टि के इंटरव्यू देखे हैं तो यू मस्ट बी फेमिलियर विद विजेंद्र सर, राइट। तो विजेंद्र सर को हम लोग भी साइड से देखते हैं, तो इंजीनियर देखते हैं और सर को देखते हैं तो वी शडर, ठीक है, कि आप मतलब हालत ख़राब करेंगे वो। तो एनी विच वेज इट इज़ ऑल डन इन गुड ह्यूमर एंड फॉर प्रिपरेशन पर्पज ओनली। आपको शायद इतने टेक्निकल सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बट यू नेवर नो द यूपीएससी बोर्ड कंपोजिशन। जैसे मैं जब इंजीनियरिंग करके आया था और मैं जब इंटरव्यू दे रहा था, तो आप लोग बालागुरु स्वामी जी को जानते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले, ई बालागुरु स्वामी। ही हैज़ रिटन बुक ऑन कंप्यूटर साइंस एक्चुअली, C एंड C++ की पहले किताब आती थी इनकी, बालागुरु स्वामी। एंड व्हेन आई वाज अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू ही वाज अ मेंबर ऑफ द यूपीएससी बोर्ड। तो माई वर्स्ट नाइटमेयर वॉज कि सर का बोर्ड ना मिल जाए, राइट, बिकॉज जैसे ही आप इंजीनियरिंग क्वालिफाई करते हैं आप सब कुछ भूल जाते हैं, राइट, तो यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। तो अभी हम लोगों के पास जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट आता है, बोलता है सर बहुत टाइम हो गया, हम लोग पूछते हैं कितना टाइम हुआ है, बोला लास्ट ईयर सर कंप्लीट किया है। तो वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि यस ठीक है, भूल गया होगा, बिल्कुल एक दिन लगता है भूलने के लिए। सो ऐसी ही बात है ना। तो आप यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे एंड फाइनली यू आर इन द coveted list, then it is off to Mussoorie. But IAS is not the only service, there are so many other services. तो 20-22 सर्विसेज हैं, all are really good, in all you can excel. तो ये एक बेसिक आइडिया है। Later on we will take questions also. Now I will not take more time. Let us welcome Miss Priyanka for sharing her journey. Thank you. Hello, everyone. Good evening. First of all, I feel really grateful to stand here on this platform today, because I have always heard that DTU is a very renowned institution for engineering, and मेरे खुद के भाई ने यहाँ से graduation की है. And the amazing thing is कि मैं कभी आज से पहले DTU नहीं आई, और मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि मैं DTU कभी आऊँगी, या ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूशन में कभी मुझे आने को मिलेगा, बिकॉज आई हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो जब मैं आज यहाँ पे आ रही थी अंदर, इट वॉज सच एन अमेजिंग फीलिंग कि मैं एक तो इतने बड़े एक इंस्टीट्यूशन में जा रही हूँ
जहाँ पर ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड पूल है. आप सब, मुझे ऐसा लगता है कि किसी से कम नहीं है. एंड वी आर हियर टू गाइड यू फॉर दिस प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज. बट स्टिल आई बिलीव कि अभी भी जो नॉलेज, जो टैलेंट आप लोगों के पास है, उसके बेसिस पे आप बहुत अच्छा करेंगे. आप चाहे जो भी करें लाइफ में, अगर आप सिविल सर्विसेज के अलावा भी कुछ और करते हैं. बट स्टिल यहाँ पर वी आर स्टैंडिंग हियर, आई एम स्टैंडिंग हियर एज अ सिविल सर्वेंट. सो लेट मी शेयर माई स्टोरी इन ब्रीफ विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद हम थोड़ी सी ये मोटिवेशन और गाइडेंस की तरफ बात करेंगे, जो कि वैसे मुझे लगता है कि सर ने बहुत अच्छे से आप सबको बताया है. बाकी जितना मुझे रेलेवेंट लगता है और जो मैंने अपनी जर्नी से सीखा है स्पेशली, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी. सबसे पहले मैं एक सीरियस मेरा क्वेश्चन है, जो कि आई गेस अभी हमारी एक बहुत ही क्यूट एंकर ने भी आप सबसे पूछा था कि आप में से कौन कौन एक्चुअली सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या एटलीस्ट ट्राई करना चाहते हैं. कि हाँ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि चलो एक अटेम्प्ट तो देकर देखेंगे या 2 अटेम्प्ट देकर देखेंगे. ओके, गुड इनफ. सो एडवांस में आप सबको ऑल द बेस्ट. प्लीज़ आप अपना उससे पहले मैं अपने बारे में बात करती हूँ. सो माई नेम इज़ प्रियंका गोयल and I have done BCom honors from Keshav Mahavidyalaya, Delhi University. उसके बाद I have been a full-time aspirant for civil services examination. So this was my last attempt and the 6th attempt. So अभी जनरल कैटेगरी के अंदर 6 attempts मिलते हैं हम लोगों को, and this was my 6th attempt and I have secured All India rank 369. थैंक यू सो मच. सो ये यहाँ पर आज अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, या मैंने जो अपने लास्ट अटेम्प्ट में ये क्वालिफाई किया है, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा ग्रेट जो मैं समझती हूँ या अपने लिए जो मैं कंसीडर करती हूँ, वो एक ऐसी क्वालिटी जो मुझे खुद के बारे में अमेज करती है और मुझे पता नहीं था कि मेरे पास एक्चुअली वो क्वालिटी है. सो दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग परसिवियरेंट इन लाइफ, नॉट गिविंग अप ऑन योर ड्रीम्स एट ऑल. इसको अगर हम बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बोले, सो दिस इज़ लाइक कि बहुत ज़िद्दी हो जाना अपने सपनों के लिए, अपनी उस मंजिल के लिए, या एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए जो हम जीना चाहते हैं, जिसके बारे में हम ख्वाब देखते हैं, हम सोचते हैं कि कभी ऐसा कुछ करेंगे, कभी उस मुकाम तक हम पहुंचेंगे. वो सपना पूरा करने की जो एक जिद होती है, आई बिलीव कि ये एक क्वालिटी है जो शायद सब में नहीं होती. यूजुअली स्पेशली जो हमारा यूथ है, हमारी जो अभी की जो ये जनरेशन है, मैंने ये देखा है कि हम लोग बहुत जल्दी ना गिव अप कर देते हैं चीज़ों के ऊपर. चाहे वो कोई इंसान हो, when it comes to the relationships, when it comes to the friendship, हम बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं. हम अपने सपनों के ऊपर गिव अप कर देते हैं कि ठीक है, अगर ये नहीं हो रहा तो कुछ और देख लेते हैं, आज ये नहीं हो रहा है कुछ और कर लेते हैं. बट ये जो एक एग्ज़ाम है ना, दिस एग्ज़ाम इज़ ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट एंड परसिवियरेंट. अगर मैं आपको अपने 6 अटेम्प्ट्स की इस जर्नी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ. सो जब मैंने 2017 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, मेरा ये बिलीव था, जैसे आप लोग अभी यहाँ बैठे हैं ना, तो जब मैं कॉलेज में थी, हमारे कॉलेज के अंदर उस साल एक टॉपर आई थी, ईरा सिंगल. वो उस साल की AIR 1 थी. वो जब आई थी और उन्होंने इस तरीके से कुछ बातें की थी, तो मैं बहुत मोटिवेट हो गई थी उनसे. उनको सुन के मुझे ये था कि यही करना है, अब मैं भी सिविल सर्वेंट ही बनूंगी और ये एग्ज़ाम ही देना है. तो मैंने अपने कॉलेज ख़त्म होते ही, अपनी ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही, ऐसे ही रैंडमली कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखी कि क्या पढ़ना होता है, एंड आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, और 17 में मैं अपना अटेम्प्ट देने चली गई. सो अब जब आप राइट गाइडेंस और राइट चीज़ों के साथ पढ़ाई नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आप इतना बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते हो. तो मैंने उस साल आई डिडंट क्लियर दी प्रीलिम्स, आई मिस्ड दी कट ऑफ बाय अबाउट
10 to 15 मार्क्स, और ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो। वो मेरी लाइफ का फर्स्ट फेलियर था। उससे पहले आई हैव जनरली एक्सेल्ड, जैसे कि स्कूल में, कॉलेज में हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे, या जिनको हम अच्छा समझते हैं 90% अबव मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, इंटेलिजेंट है, ये है वो है। ऑल्दो ऐसा कुछ होता नहीं है, बट एनीवेज जो हमारी सोसाइटी का मेजर बिलीफ है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे ये था कि मैं ये भी इजीली कर लूँगी। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, वो क्लियर नहीं हुआ। दैट वॉज अ वेरी शैटरिंग मोमेंट फॉर मी। दैट वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। उससे पहले मैंने कभी फेलियर नहीं देखा था। तो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई अपने आप से, अपनी लाइफ से, और मुझे ऐसे फील हुआ कि आई एम गुड फॉर नथिंग और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आई गेस 15 लाख है जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, देते हैं। लेकिन उस टाइम पर हम क्या करते हैं ना, हम उन बच्चों को कभी नहीं देखते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया। हम उन्हें देखते हैं जो टॉपर्स हैं। हम उनकी ग्लैमरस लाइफ देखते हैं, वो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, ये लाल नीली बत्ती के अराउंड फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, अकेडमी की फ़ोटोज़ पोस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी कुछ पार्टीज़ कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, एक ब्यूरोक्रेट वाली लाइफ जी रहे हैं। तो हम उस ग्लैमर को देखते हैं और फिर हमें और ज़्यादा बुरा फील होता है कि पता नहीं इन लोगों के पास ऐसा कौन सा टैलेंट है जो हमारे पास नहीं है। मेरा प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो उसके बाद बट व्हाट हैपेंड कि इस डिसअपॉइंटमेंट से ना मैंने उस सपने को छोड़ने के बारे में कभी नहीं सोचा। मुझे ये था कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ हम दोबारा ट्राई करेंगे। अभी तो 5 अटेम्प्ट्स बचे हुए हैं और यूपीएससी ने टोटल 6 अटेम्प्ट दिया है, तो उसने भी कुछ सोच कर दिए होंगे ये 6 अटेम्प्ट, तो सारे ट्राई करेंगे। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं सारे अटेम्प्ट्स ट्राई करूंगी अगर मुझे करने पड़े तो। मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया। अगेन आई मिस्ड द प्रीलिम्स and this time by around I guess 0.5 marks, so I again missed the cut off. But ये जो marks होते हैं ना, ये हमें अगले साल पता लगते हैं कि हमारे कितने मार्क्स से रहा है। जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है तो सिर्फ एक रोल नंबर की लिस्ट आती है एंड यू हैव टू चेक कि तुम्हारा रोल नंबर उसमें है या नहीं, एंड माई रोल नंबर वॉज नॉट देयर। सो दैट वॉज द सेकेंड फेलियर एंड अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। दोबारा से वही सारी चीज़ें, दोज हॉन्टिंग ड्रीम्स की फिर से नहीं हुआ, पता नहीं होगा या नहीं होगा। लेकिन ये भी जो एक सेल्फ डाउट वाला जो एक फैक्टर था, दिस हैज़ ऑलवेज बीन वेरी टेम्पररी फॉर मी। मेरे लिए बहुत कम टाइम के लिए ये सेल्फ डाउट फैक्टर रहता था। जो एक वो होता है ना कि हम अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को हम रीगेन करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं और दोबारा से खड़े हो जाते हैं। कितनी भी बार गिरो पर आपको वापस खड़े होना है। तो ये क्वालिटी एक बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्ज़ाम। तो मैंने वापस से थर्ड अटेम्प्ट दिया। उस साल आई क्वालिफाइड प्रीलिम्स। जब वो प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ, आई वॉज सो हैप्पी, सो हैप्पी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे अब मैं IAS बन ही गई। मैं भूल ही गई कि आगे मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है। इनफैक्ट अभी तो रियल चैलेंज स्टार्ट हुआ है, या मे बी रियल कॉम्पिटिशन स्टार्ट हुआ है, क्योंकि प्रीलिम्स में 10-15 हज़ार बच्चे ही सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं और वो ऑलरेडी एक बहुत टैलेंटेड पूल होता है, क्योंकि उसके बाद वो लोग इतने सबने एक जैसी पढ़ाई करी है और सबके पास वो टैलेंट है मेंस में बैठने का। तो लगभग अब सब इक्वल लेवल के लोग हैं जो आपस में compete करेंगे एक दूसरे के साथ। तो ये सब बातें पर उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आई एंड आई वॉज लाइक कि मैं मेंस तो निकाल लूँगी, अभी तक बस ये प्रीलिम्स ही मेरे लिए एक चैलेंज था। Then I gave the mains and I failed. So that was again a very huge setback for me, क्योंकि किसी भी अटेम्प्ट में ना मेरी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई। पहले मुझे लगता था कि मैं इजीली प्रीलिम्स कर लूँगी, प्रीलिम्स नहीं हुआ। फिर मुझे लगा था कि मैं मेंस तो निकाल ही लूँगी, मेंस नहीं निकला। सो अगेन अ वेरी ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट फॉर मी। फिर और ऐसे में जो अलग से आपकी फैमिली का या एक सोसाइटी का जो साथ में आपको सुनने का मिलता है, वो सब फ्री एडवाइसेस आती हैं कि बेटा इतने सारे लोग कर रहे हैं, क्या पता नहीं हो, क्या पता तुम इसके लिए नहीं बने हो। ये सब भी अलग से सुनने को मिल रहा था। बट देन अगेन यहाँ पर सब क्या चीज़ें काम आती है, आपकी खुद की क्वालिटीज़ जो आपके अंदर है, दे कम फ्रॉम विद इन, दैट मोटिवेशन एंड दैट एनर्जी कि नहीं करना ही है,
वो हमेशा आपके अंदर से आती है, कोई भी दूसरा इंसान आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई जर्नी. अगर आप खुद मोटिवेटेड हो अपने अंदर से, अगर आप बहुत जिद्दी हो अपने सपनों को लेकर कि करना ही है, सो नो मैटर कि बाहर वाले पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं, दोनों ही चीजें कभी आपको इम्पैक्ट नहीं करती है. आपको आपका दिल, आपकी खुद की जो सोच है, आपके जो बिलीफ है, आपके थॉट्स हैं, सिर्फ वो ही आपको इम्पैक्ट करते हैं. एंड देयर कम्स दी फोर्थ अटेम्प्ट, जहाँ पर मुझे फिर से लगा कि चलो मैंने एक बारी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, सो नाउ आई नो कि प्रीलिम्स कैसे क्वालिफाई करना है. तो इस बारी मैं प्रीलिम्स करके फिर मैं मेंस में दोबारा से अच्छे से मेहनत करूँगी. सो आई अगेन फेल्ड इन प्रीलिम्स. मेंस के बाद एक्चुअली हमें बहुत कम टाइम मिलता है अपनी दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. उस टाइम कोविड पैंडमिक भी आ गया था. सो फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट मेरे दोनों उस पैंडमिक टाइम में निकले. और फोर्थ अटेम्प्ट में the worst thing was that I couldn't qualify the CSAT. I cleared the GS cutoff but not the CSAT. और CSAT एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, एक एप्टीट्यूड टेस्ट है जिसके अंदर आपको सिर्फ 33% स्कोर करना होता है. बट अभी वो बहुत टफ हो गया है, सो आई फेल्ड दैट एज वेल. बट सिविल सर्विसेज की दुनिया में जब आप एंटर करोगे या इस प्रिपरेशन में, सो यू विल गेट टू नो कि जो CSAT का एग्ज़ाम है ना, इसको लेके थोड़े से इजी बिलीव्स हैं कि ये हो जाएगा, इजी है, क्वालिफाइंग है. तो वो खुद से एक जो मेजर सेल्फ डाउट था मेरे अंदर, वो पहली बार तब आया जब मुझे ये लगा कि मैंने CSAT भी क्वालिफाई नहीं किया है. मतलब मैं कहाँ ही कोई सिविल सर्वेंट बनने का ख्वाब देख रही हूँ. आई कुडेंट इवन क्वालिफाई क्वालिफाइंग एग्ज़ाम. बट देन अगेन जो मेरी वो जिद थी वो कभी कम नहीं हुई. उसको ये इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि वो और रिजिड होती चली गई कि नहीं, कुछ भी हो जाए करना ही है. स्पेशली जब तक अटेम्प्ट्स है तब तक करना है. अगर उसके बाद भी नहीं होता है देन आई विल एक्सेप्ट इट कि ठीक है, मे बी मेरी डेस्टिनी में शायद एक सिविल सर्वेंट बनना नहीं लिखा था, बट उससे पहले आई विल नॉट गिव अप. सो मैंने अपना फिफ्थ अटेम्प्ट दिया और फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर भी अगेन आई फेल्ड प्रीलिम्स. सो इसका जो रीज़न था वो दैट वाज नॉट द लैक ऑफ नॉलेज, दैट वाज नॉट द लैक ऑफ स्टडिंग और एनीथिंग, दैट वाज दैट सेल्फ डाउट वाली जो चीज़ थी कि पूरा टाइम पढ़ाई करते वक्त मेरे माइंड में बस यही रहता था कि अब खाली 2 ही अटेम्प्ट्स बचे हैं, पता नहीं होगा या नहीं होगा. बाकी और तरह का जो प्रेशर आपको झेलना पड़ता है फैमिली की साइड से, रिलेटिव्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स, वो सारी चीज़ों ने कहीं ना कहीं आई बिलीव कि मेरी एफिशिएंसी को थोड़ा सा डाउन कर दिया. और उसकी वजह से आई कुडंट फोकस मच ऑन माई स्टडीज़ एंड स्पेशली वाइल गिविंग एग्ज़ाम मेरे माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स थोड़े से ज़्यादा थे जिसकी वजह से आई कुडंट क्लियर. सो इससे जो मैंने सीखा उस फेलियर के बाद वो ये था कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्रीलिम्स 2 घंटे का होता है. जो GS का मॉर्निंग में एग्जाम होता है दैट इज़ फॉर 2 आवर्स. उन 2 घंटों के अंदर आपको सब भूल जाना है कि क्या चल रहा है बाहर. यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर एस्पिरेशंस एंड वॉट यू बिलीव फॉर योर सेल्फ. आपको खुद के ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप कर सकते हो, नो मैटर कोई और क्या सोचता है. अगर आप उस पॉजिटिव थॉट के साथ वहाँ पे जाओगे या किसी भी एग्जाम को देने जाओगे, यू विल एंड अप डूइंग मच बेटर. सो ये मेरी लर्निंग थी मेरे फिफ्थ अटेम्प्ट के फेलियर के बाद. एंड देन केम द लास्ट अटेम्प्ट. सो लास्ट अटेम्प्ट बहुत स्पेशल होता है, स्पेशली इस एग्ज़ाम के अंदर. कुछ लोग बहुत फॉर्चुनेट होते हैं जिनका पहले भी हो जाता है क्लियर. हर कोई ऐसा नहीं है कि लास्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करता है. तो पर जो लोग लास्ट अटेम्प्ट तक पहुंचते हैं, अगर आप कभी भी उनको सुनोगे, सो यू विल रियलाइज कि लास्ट अटेम्प्ट बहुत स्पेशल होता है. उसकी अपनी एक स्टोरी होती है और वो स्टोरी ऐसी नहीं होती है, कोई रोमांचक कहानी नहीं होती है कि जिसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सुनाया जा सके, बट वो आपके दिल में होती है और वो खुद के लिए बहुत स्पेशल होती है क्योंकि हर एक सेकंड आपको ये पता होता है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है. आप आखिरी बार उस फॉर्म को फिल कर रहे हो, आखिरी बार आप प्रीलिम्स दे रहे हो, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो आखिरी बार आप सारी चीज़ें कर रहे हो. इसके बाद आप कभी ये सब नहीं कर पाओगे. तो
और जनरली एक और चीज़ जो लगती है वो ये है कि अभी तक अगर इतना डर लग रहा था अपने किसी भी अटेम्प्ट में कि ख़त्म होने वाले हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट में वो कितना ज़्यादा होगा। पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। सो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि वो डर कंप्लीटली निकल चुका था मेरे अंदर से कि अब होगा या नहीं होगा। मुझे बस ये था कि नाउ आई एम लीविंग एवरीथिंग टू गॉड, टू माई डेस्टिनी, और मैं अपना बेस्ट दूंगी। मुझे जितना आता है, मेरी जितनी भी कैपेबिलिटी है, उसके हिसाब से मुझे बस जाकर एक पेपर लिख कर आना है, उसको टाइम से ख़त्म करके आना है, एंड दैट्स ऑल। और मैंने एक्चुअली यही किया। किसी भी एग्जाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस में, हमें 9 पेपर लिखने होते हैं और एक दिन में 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 3 घंटे का होता है, तो वो बहुत हेक्टिक होता है जब मेंस एग्जामिनेशन होती है। तो उस टाइम पर भी बस ये होता है कि हमें पेपर में जाना है, जो भी आता है, जितना आता है उसको लिखना है, ख़त्म करना है और घर वापस आ जाओ। You don't have to worry about the result. तो वो that was the first time when I cleared mains examination in my last attempt. And then comes the interview stage. इंटरव्यू के टाइम पर जब मैंने मेंस क्वालिफाई करा तो मैं वापस से बहुत खुश हो गई। मुझे दोबारा से ऐसे लगा कि चलो अब तो मैं बहुत करीब हूँ शायद अपने सपने के। और एक ये बस ये एक स्टेज है जो मुझे ख़राब नहीं करनी है, क्योंकि ये लेसन मैं पहले ले चुकी थी प्रीलिम्स के बाद। जब मुझे था कि मैं मेंस बहुत इजीली क्वालिफाई कर लूँगी, तो मुझे ये था कि नहीं, इस बार उसमें नहीं रहना है, इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने हमें एक डैफ फॉर्म फिल करना होता है इंटरव्यू के लिए, जिसके बेसिस पर आपका पूरा इंटरव्यू होता है। और उस डैफ फॉर्म में ना मेनली आप ही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आपने स्कूल डेज़ में क्या आपकी अचीवमेंट्स रही, आपकी कॉलेज डेज़ में क्या अचीवमेंट रही, आपने क्या लीडरशिप रोल कभी प्ले किया है लाइफ में, या उसके अंदर आपने स्पेसिफिकली क्या किया है, कोई अवार्ड आपने जीता है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आपके इंटरेस्ट एरियाज़ क्या क्या है, यही सब आपको उसके अंदर फिल करना होता है। और इसी के बेसिस पर जो है आपका पूरा इंटरव्यू चलता है। तो ये अब मैंने बहुत केयरफुली फिल करा ताकि जो मेरा इंटरव्यू है वो थोड़ा मेरे फेवर में टर्न हो। एंड एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही हुआ। माई इंटरव्यू वेंट वेरी वेल। जो भी मुझसे क्वेश्चन पूछे गए या जो बोर्ड मेंबर्स थे उनके जो एक्सप्रेशन से जितना उनसे मुझे समझ में आया, सो इट वाज वेरी गुड एंड अकॉर्डिंगली आई स्कोर्ड ऑल्सो। तो उसके बाद फाइनली द रिजल्ट केम एंड माई नेम वॉज देयर। सो अगेन दैट वॉज अ फीलिंग विच आई डोंट थिंक आई कैन डिस्क्राइब एवर इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच। सो वो जब आप एक फीलिंग वो जब आप उस चीज़ को फील करते हो, आप अपना नाम देखते हो, जो अचीवमेंट, दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट जब आप फील करते हो उस टाइम पे, दैट इज़ अनमैचेबल। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी और ऐसी चीज़ नहीं है जो अपना सपना पूरा होने से ज़्यादा आप किसी और चीज़ में फील कर सकते हो। और वो चीज़ आती है आपके खुद के डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, आपके हार्डवर्क से और आपकी परसीवियरेंस से। और सिर्फ यही 4 क्वालिटीज़ हैं जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। हम जनरली सुनते हैं ना कि IAS का एग्ज़ाम है, हमारी कंट्री का सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है, तो इसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए। या स्पेशली जो बच्चे बन भी जाते हैं तो हम जनरली अपने पेरेंट्स से सुनते हैं, अपने रिलेटिव से सुनते हैं कि वो उसका बेटा या बेटी IAS बनाए या कुछ और बनाए, तो वो लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत उनको नॉलेज होगी, बहुत पढ़ते होंगे, उनको सब कुछ आता होगा। हम ऐसा जनरली सुनते हैं, लेकिन आई एम एक्चुअली ब्रेकिंग दिस मिथ कि ऐसा नहीं होता। दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट नॉलेज, दिस एग्जाम इज नॉट मच अबाउट योर इंटेलिजेंस फैक्टर, रादर दिस इज मोर about your consistent efforts, your dedication towards becoming something. और ये जो एक फीलिंग है ना कि दैट in case you want to be a civil servant and if you want to actually appear for this exam, तो जैसा अभी सर ने भी बोला, आपको एक बहुत strong reason चाहिए उसके लिए, because the CSC preparation is not any kind of a sprint, it is a marathon. आपको इसको बहुत लंबे टाइम तक इसकी जंग को लड़ना है। और ये नो मैटर कि आप कितने अटेम्प्ट्स दे रहे हो, आई वुड से कि आप लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करो,
बट अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में भी करते हो, फॉर दैट ऑल्सो यू नीड ऑलमोस्ट 2 years. सो ये 1 साल की प्रेपरेशन और 1 साल इस एग्जाम को ख़त्म होने में लग जाता है. प्रीलिम्स से लेकर जब अगले साल रिजल्ट आता है पूरे फाइनल स्टेज ख़त्म होने तक, उसमें पूरा लगभग 1 साल निकल जाता है. तो एक साथ 2 साल इसके अंदर लगते हैं. उन 2 सालों के लिए भी कंसिस्टेंट रहने के लिए यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीज़न. अब वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है. हर एक की अपनी एक सोच होती है, हर एक इंडिविजुअल की, कि उनको एक्चुअल में क्या चाहिए लाइफ से, वो क्या सीख कर रहे हैं. सो मैं आपको एक छोटा सा इंस्टेंस शेयर करती हूँ. मेरे एक अंकल है एंड वो एक रिटायर्ड IPS है. जब मेरा सिलेक्शन हुआ था सर्विस के अंदर, तो उसके 1-1.5 महीने के बाद मैं थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रही थी. मुझे ये था कि नाउ व्हाट, अब तो सिविल सर्वेंट बन गए हैं, अब क्या, क्योंकि अभी तक का वही एम था. और जो मेरा रियल एक मोटिवेशनल जो फैक्टर था कि मुझे सिविल सर्वेंट क्यों बनना है, वो बस इतना सा था कि हाँ, मैं कुछ हमारी जो सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनको लेके बहुत टच्ड फील करती थी. और मुझे ये था कि मुझे उस एरेना में काम करना है और वहाँ पे कुछ चेंजेस लेकर आने हैं. दैट वाज द रीज़न. लेकिन ये बहुत ब्रॉड रीज़न है जो कि मुझे सिलेक्शन के बाद समझ में आया. तो आपका जो रीज़न हो वो थोड़ा सा कंसाइज होना चाहिए. वो आपके माइंड में जितना छोटा और उतना क्लियर होना चाहिए. उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो जो मेरे अंकल हैं दी ऑफिसर, उन्होंने मुझे बताया कि आप अपने लिए एक एक्सरसाइज करो. जस्ट राइट 3-4 गोल्स ऑफ योर लाइफ. इमेजिन योर सेल्फ कि अभी आप 60+ के फेज में हो, या अभी आप एक 60 साल के इंसान हो और आप बेबी कहीं से रिटायर हो रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी की CEO की पोजीशन से रिटायर हो रहे हो, या आप एज अ सिविल सर्वेंट रिटायर हो रहे हो, या आप कुछ भी हो, वट एवर यू आर डूइंग. 60 के आप इमेजिन करो कि आप 60 साल के हो. एंड नाउ समबडी इज आस्किंग, आपसे कोई पूछ रहा है कि आपने क्या अचीव किया अभी तक की अपनी लाइफ में. उसके लिए आपके पास क्या, आप ये सोचो कि आप उस इंसान को क्या आंसर दोगे तब, कि आपने क्या अचीव किया. वो जो आप ये आंसर तब दे पाओगे जब आपको पता होगा कि आपने क्या अचीव किया. और ये पता आपको तब होगा जब आपने पूरी लाइफ उस चीज़ के ऊपर काम किया होगा. आपके माइंड में आपका गोल जो है वो फिक्स होगा कि मुझे ये काम करना था. तो अभी आप क्या कर सकते हो उसके लिए, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी ग्रूमिंग ऑल्सो विच विल हेल्प यू इन लॉन्ग रन. आप अपने 3-4 गोल्स लिखो एक पेपर के ऊपर. जैसे किसी का गोल हो सकता है मनी, किसी का हो सकता है फेम, किसी का पावर पोजीशन, किसी का हो सकता है कि उन्हें बहुत अच्छे नेटवर्किंग बनानी है अपनी, मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्रेंड्स और एनीथिंग. और किसी का गोल हो सकता है कि उनको कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करना है, दे वांट टू बी अ चेंज मेकर. एक ये आपका गोल हो सकता है. तो आप इन सबको आप एक पेपर पे नोट डाउन करो एंड देन प्रायोरिटाइज देम, कि उसके अंदर से क्या सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसके उसको जो भी गोल आप अपने फर्स्ट पोजीशन पे रखोगे, डिसाइड योर एम अकॉर्डिंगली. और इनमें से कोई भी अगर आपका गोल है रिलेटेड टू सोसाइटी, रिलेटेड टू ब्रिंगिंग दैट चेंज, related to having that position, power and immense responsibility of doing something, then this is the exam which actually provides you that platform. I believe that this is the job which actually provides you the diverse experience, diverse opportunities to work in diverse fields. ये आपकी पर्सनालिटी को इतना इन्हांस करती है, इतना ग्रूम करती है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप अपने इंटायर करियर में कितने डिपार्टमेंट्स में काम करोगे, कितने डेली बेसिस पे. अगर आप 500 लोगों से मिल रहे हो, तो उन 500 लोगों से मिलने में आप हर इंसान से कुछ तो ज़रूर सीखोगे, विच विल हेल्प यू इन बिल्डिंग योर कैरेक्टर एंड योर पर्सनैलिटी एज वेल. सो ये काम आप अपने लिए ज़रूर करना. उसके अलावा जो मैंने बोला मोटिवेशन फैक्टर. सो सी, आप सबको भी ये पता होगा कि मोटिवेशन एक बहुत टेम्पररी फीलिंग है हमारी लाइफ की. हम 24/7 कभी मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं. या फिर हो सकता है कि आज आप अपने किसी भी जिस भी लोग से आप इंस्पायर्ड फील करते हो, अगर आप उनको सुन रहे हो, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आप बहुत मोटिवेट हो जाओ,
फॉर एग्जाम्पल अगले 10 मिनट के लिए या अगले 1 दिन के लिए, 1 महीने के लिए शायद आप मोटिवेट हो जाओ, बट ये फीलिंग बहुत जल्दी वैनिश हो जाती है, जो दिस मोटिवेशन फीलिंग। सपनों को पाने के लिए या सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं होता है लाइफ में, यू नीड टू एक्ट अपॉन दैट, and that comes with the consistency, that dedication and perseverance for your goal, for your dream, and that is required to clear civil services or any examination. अगर मैं इसके बाद आप लोगों से अगर एग्ज़ाम की थोड़ी सी गाइडेंस के बारे में बात करूं, ऑल्दो मुझे लगता है कि सर ने उसके बारे में काफ़ी बताया है आपको, जो एग्ज़ाम का प्रोसेस है, बट हम अभी एक करंट फेज़ में, जिस करंट फेज़ में आप लोग अभी हैं, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं कि अभी आप लोग क्या कर सकते हैं अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं। तो इस एग्ज़ाम के लिए ना 2-3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत जनरल है, जो अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दो कल को तो भी आपके लिए वो काम की ही रहेंगी। वो नॉलेज और जो आपकी पर्सनालिटी को जो चीज़ ग्रूम करेगी, वो सब चीज़ें वो हमेशा आपके काम आएंगी। तो इस टाइम पे आप उन चीज़ों के साथ स्टार्ट कर सकते हो, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूज़पेपर रीडिंग, या फिर अपने आप को करंट अफेयर्स से अपडेटेड रखना। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस एग्जाम एज वेल एंड इन जनरल ऑल्सो, आई बिलीव, क्योंकि जो लोग करंट अपडेटेड होते हैं या जिनको बहुत अवेयरनेस होती है कि उनके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है, वो लोग हमेशा एक अपर एज पर होते हैं किसी से भी बात करने के मामले में, किसी के साथ भी इंटरैक्ट करने के लिए। सो हैविंग दैट अपर हैंड इन योर लाइफ, इन योर पर्सनैलिटी, सो यू मस्ट स्टे अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स। सेकेंड, इसके लिए बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप स्ट्रेट अवे न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ़ यू आर सीरियसली एस्पायरिंग टू गिव द एग्जाम, तो कुछ करंट अफेयर्स की अच्छी मैगजीन्स आती हैं, आप उनको रेफर कर सकते हो। एक मंथली योजना आती है गवर्नमेंट की, जिसके ऊपर एक पर्टिकुलर इशू पे बहुत डिटेल में बात होती है, आप उसको भी देख सकते हो। उसके अलावा एक इसके अंदर ऑप्शनल का पेपर होता है, आप उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चूज़ करना है, उसके ऊपर आप अभी से काम कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि मैंने बोला कि इट्स अ मैराथन, सो आपको बहुत लंबी पढ़ाई करनी है, बहुत सारे दिनों के लिए, और एक दिन में इफ़ यू हैव टू स्टडी फॉर अबाउट 8 to 10 आवर्स, सो फॉर दैट यू नीड अ टाइम टेबल, यू नीड अ प्रॉपर प्लानिंग। आप जैसे कि मैंने सिंस आई एम नॉट फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड, बट मैंने जितना सुना है वो ये है कि साइंस वाले एक रात पहले पढ़ के ही पूरा एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, या एक तो ये सुनने के लिए बहुत अच्छा है, बट ये इस एग्ज़ाम के अंदर प्रैक्टिकल नहीं है, एंड दिस वोंट वर्क हियर एज वेल। तो अगर जो भी आप जो साइंस फील्ड से जिन्होंने एग्ज़ाम क्रैक किया हो, कभी आप उनसे बात करना, या आप कभी उनका कोई इंटरव्यू है, कोई सेमिनार सुनना, तो आपको पता चलेगा कि दिस विल नॉट वर्क हियर। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंटली 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करनी ही पड़ेगी पूरे साल के लिए, और उसके लिए दैट टाइम मैनेजमेंट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको अपना बताती हूँ थोड़ा सा कि मैं उस चीज़ को कैसे मैनेज करती थी। सो आई यूज टू हैव प्लान्स, जैसे कि प्लान A, B, C, समटाइम्स D एज वेल। तो क्या होता था कि प्लान A इज़ मेनली माई दी स्टडी आवर, कि मुझे कितने घंटे पढ़ना है। सपोज अगर एट अ स्ट्रेच मुझे 3 घंटे पढ़ना है, तो दैट वॉज माई प्लान A। देन अगर मैं बोर हो गई हूँ या मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है, देन यूज टू कम प्लान B। तो प्लान B के अंदर क्या होता था, अगर आप इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा ना करने की जगह, जैसे कि सपोज आपको इंस्टाग्राम आप चला रहे हो या कोई और आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हो, आप वेब सीरीज़ देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, उससे ज़्यादा बेटर ये है कि आप जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आप कोई पॉडकास्ट सुन लो, या आप कोई करंट अफेयर की वीडियो सुन लो, या कोई स्पेसिफिक इशू, आप सिलेबस में से कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक उठा लो, या कोई इन जनरल भी आप कोई टॉपिक उठा लो, जैसे सपोज वाटर क्राइसिस। सो वाटर क्राइसिस एक प्रोमिनेंट टॉपिक है, या ग्लोबल वार्मिंग, या कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक चूज करो और उसके बारे में आप थोड़ा 3-4 आर्टिकल्स पढ़ो, आप कोई रैंडम वीडियोस देख लो, तो वो काइंड ऑफ एक अच्छा प्लान भी होता है। उसके बाद आता था प्लान C।
तो मेरा जो प्लान सी था उसको मैं थोड़ा सा अपना हॉबीज़ के लिए रखती थी, क्योंकि वेरी फ्रैंकली आई वुड लाइक टू टेल दैट दिस एग्ज़ाम एक्चुअली सक्स अप योर माइंड एंड ये आपकी मेंटल हेल्थ को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है, स्पेशली इफ़ यू आर नॉट हैबिचुअल ऑफ रीडिंग सो मच और सिटिंग एट अ प्लेस एंड गिविंग लॉट ऑफ टाइम टू बुक्स। तो कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होगी, स्पेशली आप अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद अगर ये करोगे एज अ फुल टाइम एस्पिरेंट। तो उस मेंटल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, टू हैव अ हेल्दी माइंडसेट, यू नीड टू हैव सम एक्टिविटी आवर्स। तो एक्टिविटी आवर्स के अंदर आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हो। कोई भी हॉबी हो सकती है, रीडिंग, राइटिंग, डांस, म्यूजिक, वॉट एवर, जो भी आपको करना पसंद है, बट कीप 1 or 2 hours फॉर दैट एक्टिविटी और अपनी हॉबीज़ के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आई हैव गिवन 6 years टू दिस जर्नी एंड अब यहाँ पे या फिर सिलेक्शन के बाद जितना आफ्टर दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड रियलाइजेशन, व्हाट आई रियलाइज्ड इज कि सबसे ज़्यादा अगर इस एग्ज़ाम प्रोसेस में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ हैविंग अ हेल्दी माइंडसेट। और वो हेल्दी माइंडसेट सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं आता है, वो सारी चीज़ें करने से आता है जिनसे आपको खुशी मिलती है। तो उन चीज़ों को आप इग्नोर मत करो, आप उनको साइड बाय साइड अपनी पढ़ाई के साथ रखो एंड मेक अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम टेबल, हैव दैट गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स एंड देन आई बिलीव कि अचीविंग एनीथिंग इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आई थिंक मैंने आपको जितना मुझे लगा इम्पॉर्टेंट उतना मैंने काफ़ी कुछ आपको बताने की कोशिश की है। Thank you, Ms. Priyanka Goyal and Mr. Abhishek Mishra, for your inspiring words. Now we will open the floor to questions from the audience. If you have a question, please raise your hand and our volunteers will provide you with a microphone. Good evening, ma'am. Ma'am, my question to you is कि कोई भी एस्पिरेंट जब प्रिपेयर कर रहा है, एज्यूमिंग कि वो बेसिक चीज़ें तो कर रहा है जो टॉपर टॉप्स है वो सुन के, लेकिन मैम जो छोटी छोटी माइक्रो प्लानिंग होती है, फिर कोर्स करेक्शन होता है, तो जैसे टुक मोर अटेम्प्ट्स फॉर यू, तो कुछ तो गलतियाँ आपने की होंगी, तो ये कैसे समझें अगर हम अकेले प्रिपेयर कर रहे हैं या बहुत छोटे ग्रुप के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो माइक्रो प्लानिंग और कोर्स करेक्शन कैसे हो सकता है, स्पेशली इन इंजीनियरिंग कॉलेज? ओके, सी जब आप जैसे मेरा रहा कि आई हैव गिवन ऑल दी अटेम्प्ट्स, तो हर एक अटेम्प्ट के बाद मैं ऐसा नहीं है कि मैं सीधा पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। आई यूज टू फाइंड आउट, आई यूज टू फिगर आउट कि इस बारी क्या कमी रही, और वो चीज़ फाइंड करने के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स ट्राई टू गो थ्रू द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। जो हम उसको ना बहुत ही अंडर एस्टिमेट करते हैं जो यूपीएससी का सिलेबस है, बट ट्रस्ट मी दैट इज़ द की टू क्लियर दिस एग्जाम। मैंने भी स्टार्टिंग में ऐसा किया था कि विदाउट रेफरिंग टू द सिलेबस आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग, बिकॉज ऐसे हम टॉप, आई सेड ना कि यूट्यूब पे आप रैंडम वीडियोस देख लेते हो, आप टॉपर्स टॉक सुन लेते हो, एक बहुत ही रिकमेंडेड कोई बुक लिस्ट होती है, आप उसको उठा लेते हो और बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। बट हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है और एक वीकनेस, कुछ वीकनेसेस होती है, कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, जो हर एक इंडिविजुअल को अपने खुद के लिए फाइंड आउट करनी होती है। तो जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, उस केस में जो द थिंग यू आर टॉकिंग अबाउट दैट माइक्रो प्लानिंग, वो आती है जब आपको फील होता है खुद से कि आपकी स्ट्रैटेजी में या आप जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो उसमें कुछ कमी है। तो उसको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने आप को एनालाइज करो। दैट सेल्फ एनालाइज थिंग इज इम्पॉर्टेंट, और वो कैसे आती है? बाय सॉल्विंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसके अंदर यूपीएससी को क्लियर करने का जो एक सबसे आई वुड से कि ईजी तरीका है, या उसको समझने का एक ईजी तरीका है, वो सिर्फ ये है कि आप बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो, प्रीलिम्स के, मेंस के। उससे आपको ये समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, और फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे जो भी आपने पढ़ा है, आप कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखो या अपने माइंड में उनको सॉल्व करके देखो। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग विद अ ग्रुप, इफ़ यू आर डूइंग अ ग्रुप स्टडी विच इज़ वेरी गुड थिंग, तो आप उन क्वेश्चंस को ऐसे ओरली इन जनरल आप अपने ग्रुप में डिस्कस करो एंड सी कि आप लोगों को उससे रिलेटेड क्या कुछ समझ आ रहा है, या आप कुछ चीज़ें आंसर कर पा रहे हो। अगर आप कर पा रहे हो तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, और अगर आप नहीं कर पा रहे हो देन यू हैव टू रिवाइज योर स्ट्रैटेजी। Thank you, ma'am.
evening, ma'am. Ma'am, this side. Okay, yeah. Ma'am, myself, Avinash Misra from MTech first year, IT branch. Okay, Avinash. Yes, ma'am. Okay. Ma'am, my question is that I have heard many toppers talk. They said that Plan B is very important in UPSC journey to rely on, as it gives a Yes. backup support. So, what's your take on this? And what was your backup plan? Okay. Avinash, this is actually a very right thing that plan B is important because 100% आप किसी एक चीज़ के ऊपर rely नहीं कर सकते हो. तो एंड दिस एग्जाम इज़ ऑलरेडी वेरी डाइसी कि आप क्लियर करोगे या नहीं करोगे बिकॉज इसका क्लियरिंग रेशो बहुत कम है, इवन लेस देन 0.1%. तो इन दैट केस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लान बी फॉर दैट सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉर सेंस ऑफ पीस इन योर माइंड कि अगर ये नहीं हुआ तो आई एम हैविंग दिस थिंग इन माई हैंड और मैं ये कर सकता हूँ. ये चीज़ कहीं ना आपको एक मेंटल पीस प्रोवाइड करती है और थोड़ा सा आप ज़्यादा फोकस होके फिर पढ़ाई कर पाते हो. और अगर मैं अपनी बात करूँ तो इनिशियली 3 अटेम्प्ट्स तक मेरा भी कोई प्लान भी नहीं था बिकॉज देयर वाज नोबडी टू गाइड मी कि प्लान भी होना ज़रूरी है. तो मुझे एंड आई वाज सो पैशनेट अबाउट क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम कि मैंने तब तक प्लान बी के बारे में सोचा ही नहीं कि मुझे कुछ और भी करना है. बट जब 3 अटेम्प्ट्स तक भी वो क्वालिफाई नहीं हुआ था सो देन आई हैड अ बैकअप प्लान. So in my college days, I was little bit into the modeling thing. So that became actually my backup plan कि अगर कुछ नहीं होगा, so I will get into that field. Good evening, ma'am. My name is Kunal and I am from Computer Science branch first year. Actually, my question is like we have been through JEE here, Joint Entrance Examination, and we have been asked by our teachers to limit the resources because there are some concepts through which the questions have been asked in the JEE examination. But in the UPSC, I want to ask that whether we should limit the resources. Like in the case of history, there is a vast nature of subjects or the theories. So do we need to limit the resources or not? Yes, definitely कुणाल. UPSC का अगर आप सिलेबस देखोगे तो यू विल रियलाइज कि उसका सिलेबस है तो सही, UPSC ने दिया है, बट स्टिल वो सिलेबस इतना वास्ट है कि उसके लिए अगर आप अनलिमिटेड रिसोर्सेज भी रखो तो शायद वो भी कम ही पड़ेंगे. तो बट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो. तो यू हैव टू लिमिट योर रिसोर्सेज बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ योर गोल? यू हैव टू क्लियर द एग्ज़ाम. आपको सिर्फ यहाँ पे आपको बुक कलेक्टर नहीं बनना है, जो कि हम लोग यूजुअली बोलते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है. तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होना बहुत ज़रूरी है. और जब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है तो उसकी कुछ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ की कुछ लिमिटेशंस होती है. वैसे यहाँ पे रिसोर्सेज की है. और एग्ज़ाम के अंदर व्हेन यू हैव टू राइट सो यू हैव टू रिकलेक्ट थिंग्स, और वो रिकलेक्ट तब कर पाओगे जब आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा. तो पूरे साल में अगर आपके पास 10 बुक्स हैं और आपने उनको हर एक किताब को 10 बार पढ़ा है तो आप एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाओगे रादर देन रीडिंग 100 बुक्स जस्ट कि एक बार पढ़ लिया है और ठीक है तो बहुत नॉलेज आ गई है. उसके बेसिस पे कभी भी एग्जाम क्लियर नहीं होगा. प्रियंका जी ने जो बताया है दैट इज़ टोटली करेक्ट. आई विल ऐड टू इट कि इन यूपीएससी प्रिपरेशन वी हैव अ गोल्डन रूल, वन सोर्स मल्टीपल टाइम्स. मल्टीपल सोर्सेज वन टाइम इज श्योर शॉर्ट वे टू फेलियर इन दिस एग्ज़ाम. तो आपको अपने सोर्सेज आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए बिगिनर टू आइडेंटिफाई, क्योंकि आप किसी से भी सुनेंगे. इनफैक्ट समटाइम्स यू विल फाइंड ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, मे बी ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो. तो आपने जैसे जी के लिए भी अल्टीमेटली यू वुड हैव कम टू ए स्ट्रैटेजी वेयर यू वुड हैव जीरो डाउन ऑन फ्यू बुक्स, फ्यू सोर्सेज, और उसको आपने ठीक से किया. ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ भी सी वी आर लिविंग इन एन एज ऑफ पैंडेमिक खत्म हो गया लेकिन इन्फोडेमिक इज कंटिन्यूइंग. ठीक है, इन्फॉर्मेशन का जो पैंडेमिक है. नाउ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज देयर, यू हैव मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स, एंड एवरीबडी इज ट्राइंग टू गिव यू इन्फॉर्मेशन. लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे कितनी इन्फॉर्मेशन और कहाँ से लेनी है. सो इन दृष्टि ऑल्सो वी हैव अ दृष्टि लर्निंग ऐप. आप चाहें तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ आपको काफ़ी कुछ फ्री क्यूरेटेड कंटेंट मिलेगा. बट एक और बात है कि फ्री लंचेज आर नॉर्मली नॉट अप्रिशिएटेड, देने वाले से भी नहीं और लेने वाले से भी नहीं.
बट स्टिल इन दृष्टि लर्निंग ऐप यू विल फाइंड लॉट ऑफ फ्री कंटेंट विच विल बी यूजफुल. और इसके साथ मेरा एक जनरल सजेशन होगा कि अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस बढ़ाइए इस एग्ज़ाम में. अगर आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं भी हैं, सो स्टिल वी शुड हैव जनरल अवेयरनेस. अगर आप बड़े जो कंपनीज आएंगी उनके भी जीडी वगैरह में बैठेंगे, टेस्ट में बैठेंगे, तो आपके जो बैचमेट्स होंगे सभी को नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज तो बराबर है, बट अगर आप स्टैंड आउट करेंगे, इफ़ यू आर मोर अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, तो वो थोड़ा सा करना है, वन सोर्स मल्टीपल टाइम, राइट. दृष्टि लर्निंग ऐप से आपको हेल्प होगी. थैंक यू. Good evening, sir. My name is Pranjal and I am from electronics branch. So my question is that what is the right time to begin the preparation? So should I start now onwards or should I complete my graduation and then I should start preparation? प्रांजल, आप कौन से ईयर में हैं? सेकेंड ईयर. ठीक है. सी वी गेट दिस क्वेश्चन फ्रॉम सो मैनी स्टूडेंट्स हु आर इन देयर ग्रेजुएशन. तो मैं अगर अपनी बात करूं तो आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट गिविंग द एग्ज़ाम व्हेन आई वाज इन 4th ईयर, राइट. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, आई डोंट वांट एन इंजीनियरिंग जॉब, आई वांट टू गो फॉर सिविल सर्विसेज. बट नाउ द ट्रेंड हैज़ चेंज्ड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स. हम देख रहे हैं कि कैंडिडेट्स जो आ रहे हैं इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए एंड फाइनल सिलेक्शन हो रहा है, दे आर जनरली इन द यंगर लॉट. ठीक है, मतलब 25 के आसपास के कैंडिडेट सिलेक्शन ले रहे हैं. इससे पहले एक टाइम था जब पीपल यूज टू डू देयर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, 2 साल का वर्क एक्स ले रहे हैं. 27-28 के आसपास दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम इंटरव्यू वगैरह तक आते आते 30 ईयर्स. बट नाउ वी फाइंड 30 ईयर्स ओल्ड कैंडिडेट्स वेरी रेयरली. जो लोग आ रहे हैं 22 साल 23 साल. सो व्हाट हैज़ हैपेंड, पीपल हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग वाइल इन ग्रेजुएशन. तो मेरे ख्याल से अगर आप कंफर्टेबल हैं, यू कैन मैनेज योर स्टडीज़, देन मे बी अराउंड 2nd और 3rd ईयर यू कैन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस एग्ज़ाम. आप पहले अपना फाउंडेशन बिल्ड करिए. उसके लिए मे बी गोइंग थ्रू द NCERTs, न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालिए, उससे आपको हेल्प होगी. एंड मे बी बाय द एंड ऑफ 3rd ईयर और 4th ईयर यू कैन थिंक ऑफ टेकिंग अप मे बी ऑनलाइन कोर्सेज, बिकॉज ऑनलाइन कोर्सेज, वी आर स्टेइंग इन अ प्लेस लाइक दिल्ली. मुझे यहाँ आते हुए 1.5 घंटा लगा, ठीक है, और मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, राइट. तो वन कैन इमेजिन हम दूसरे शहर पहुँच सकते हैं इतने टाइम में. तो अगर आपको डेली बेसिस पे ऐसा कम्यूट करना पड़ेगा कि 1.5 घंटे लगेंगे, तो यू विल बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम फॉर नथिंग. तो इट इज़ मच बेटर कि आप ऑनलाइन कोर्सेज पे फोकस कर सकते हैं, जिसमें कि आप सेल्फ पेस कर पाएंगे अपने आप को, और इट विल बी मोर यूजफुल. इट विल गिव यू अ फ्लेवर ऑफ द एग्ज़ाम, कैसे तैयारी करनी है, गाइडेंस मिल जाएगी, एंड देन यू कैन मे बी प्लान अहेड. ठीक है, थैंक यू. गुड इवनिंग सर. सर मैं क्रिस्मन, 2nd ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स से. सर मेरा सवाल है कि सर दृष्टि IAS हमें IAS प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करेगा अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड ऑल दैट? योर गुड नेम? सर क्रिस्मन. Krisman. Okay, very unique name, huh? Krisman, in Drishti IAS we have lot of products for the students. और जैसे कि मैंने बताया, एक तो दृष्टि लर्निंग ऐप है जिसमें बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है, प्लस यू विल हैव शॉर्ट कोर्सेज विच यू कैन बाई इफ़ यू फील कि वो आपके से रेलेवेंट है. प्लस व्हाट वी आर हैविंग इज फाउंडेशन कोर्सेज इन आवर सेंटर्स, एंड वी आर ऑल्सो हैविंग दिस हाइब्रिड बैचेस, जहाँ की जैसे मैंने बताया कि आप ऑनलाइन कोर्सेज ले सकते हैं. सो यू हैव द सेम ऑफलाइन कोर्स. जो बच्चे वहाँ ऑफलाइन में कर रहे हैं वही चीज़ आपको लाइव स्ट्रीम होगी ऑन योर दृष्टि लर्निंग ऐप. सो व्हाट इज हैपनिंग इज यू आर सेविंग ऑन टाइम. आप अपना टाइम सेव कर रहे हैं, यू कैन फोकस ऑन योर स्टडीज़, यू कैन मैनेज योर इंजीनियरिंग स्टडीज़ एज वेल. सो दैट इज़ हेल्पफुल. प्लस वी हैव मेंटरशिप प्रोग्राम ऑल्सो, कि जैसे जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी कोचिंग कर चुके हैं, दे वांट सम हेल्प, गाइडेंस ऑन आंसर राइटिंग एंड अदर एरियाज रिलेटेड टू एग्जाम. तो वी हैव अवर मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑल्सो, और वहाँ स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी प्रोविजन है, राइट. थैंक यू. Thank you so much, sir. As we come close to the end of this remarkable event, I would like to express our heartfelt gratitude to our guest speakers, Ms. Priyanka Goyal and Mr. Abhishek Mishra, for taking time to enlighten us with their experiences and knowledge. To all the attendees, thank you for joining us today. We hope that you leave this event feeling motivated and better equipped
to pursue your aspirations in the civil services. Remember, success is born from dedication and the relentless pursuit of excellence. Thank you, everyone.